السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان۔ فضیلت رمضان ہماری سحری ٹرانسمیشن جو ہے وہ اب بڑی ماشاء اللہ سے بڑے اچھا رسپانس آ رہا ہے، بہت بتدریج جو ہے وہ ہم اس کو چلا رہے ہیں اور اچھے دوست اچھے مہمان ہمارے اس پروگراموں میں آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں، ہمارے جو ہوسٹ ہیں وہ ہیں ایس کے اظہار صاحب۔ کیونکہ وہ کیوں ہیں، آج ہماری اریبہ جو ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو پروگرام تو ہم نے کرنا ہی کرنا تھا، اس لیے اظہار صاحب نے کہا کہ میں ان کی جگہ میں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کیسے ہیں اظہار صاحب؟ اچھا، اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے نہیں دنیا کے معروف نعت خواں حاجی ناصر یامین بھی موجود ہیں۔ کیسے ہیں ڈاکٹر ناصر بھیا؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ ہمارے ایک سینئر صحافی اور یوں سمجھ لیں کہ عسکری تجزیہ نگار آپ کہہ سکتے ہیں کہ عسکری تجزیہ نگار دانش جعفری بھی موجود ہیں۔ کیسے ہیں دانش؟ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام میں آج شرکت کی۔ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اظہار صاحب، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو باری تعالیٰ سنتے ہیں، خاص خصوصی طور پر پروگرام کا آغاز اللہ کا نام سے شروع کریں۔ بہت شکریہ پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شمس و قمر یہ ارض و سما، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اول بھی تو آخر بھی تو، ظاہر بھی تو باطن بھی تو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اول بھی تو آخر بھی تو، ظاہر بھی تو باطن بھی تو، سب کا والی سب کا مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت والا تو مطلق ہے، عظمت والا تو برحق ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قدرت والا تو مطلق ہے، عظمت والا تو برحق ہے، معبود نہیں کوئی تجھ سا، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، عرش عالی فرش خاکی، فردوس بری پہنائے زمین، عرش عالی فرش خاکی، فردوس بری پہنائے زمین، یہ بھی تیرا وہ بھی تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیما تیرا مسکی بندہ ہے، طالب رحم و فضل
و عطا سیما تیرا مسکین بندہ ہے طالب رحم و فضل و عطا کہتا ہے یہی سجدے میں پڑا سبحان ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ساگر صاحب بہت ناصر زبردست جامن صاحب نے جو نعت پیش کی ہے الحمدللہ کل کائنات جتنے بھی لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں براہ راست ہمارے رمضان فضیلت کے پروگرام کو یقیناً المعروف بالکل المعروف اور المعروف بھی پوری دنیا کے پوری لیے دنیا خالی کے پاکستان کے لیے نہیں تو ہے. اب ایک ویل نون نعت خواہ ہے ہمارے ناصر جامن بھائی جی جی. ان کی آواز میں جو مطلب کہ مٹھاس ہے بالکل جو بالکل. مطلب کہ ان کی آواز میں جو وہ کڑک ہے جادو ہے جادو ہے لوگ کہ کھینچے جب چلے آتے نعت ہیں یہ پیش کرتے ہیں سر. ہماری آپ دیکھیں نا ہماری اریبا جو اینکر ہیں وہ تو کھو جاتی ہیں, تو شکر ہے بھی نہیں ہے ورنہ وہ کھو جاتی ہیں. اتنا مقصد نہیں کھو تو میں بھی جاتا ہوں, دیکھیں میں جی کھو بھی جی, جاتا ہوں, میں بالکل, جھوم بھی جاتا ہوں بالکل, بالکل. جب نبی کا نام آئے بے اور شک. اللہ کا نام آئے نبی کا درود پیش کیا جائے ویسے ہی ہر اس میں, مسلمان جھومنا چاہیے, تو میں خود بھی جھوم جاتا ہوں. آپ نے بالکل. دیکھا ہوگا دانش ہمارے ساتھ ہیں. دانش جعفری کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ. ایک تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, کیونکہ آپ کے پاس تو وقت ہوتا ہی نہیں ہے. آج ہم نے بہت مشکلوں سے بالکل ہمارا ویلکم ہے, کیونکہ یہ عسکری جو ہے تجزیہ نگار ہیں, اور عسکری جب مائنڈ سے یہ دیکھتے ہیں تو ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں, ان کے زبانی ان کے سننا چاہتے ہیں. کیا آپ کے پاس ہے اس کو شیئر کریں. کیا لگ رہا ہے دانش یہ افغانستان کو کیا سوچی جو پاکستان پر اس نے حملہ کر دیا؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ افغانستان کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, افغانستان کو سوجی نہیں, کچھ قوتیں ہیں جو پیچھے ہیں. اچھا, انہوں نے پاکستان کو ایک ہدف بنانا ہے. ٹھیک ہے. ایران ان کا ہدف نہیں تھا. ایران نہیں تھا. ایران ان کا ہدف نہیں ہے, اور ہدف ہے پاکستان. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ایٹمی اثاثہ اور تمام چیزوں سے ہم ماشاءاللہ لیس. ٹھیک ہے. ایران کے جو پیچھے سے ان کے جو آقا ہیں, یعنی جیسے کہ ان کو لے لیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. جی ڈونلڈ ٹرمپ بالکل, اور تو برطانیہ نے بھی اعلان کر دیا, فرانس نے بھی اعلان کر دیا. تو انہوں نے پیچھے سے اس کو افغانستان کو جو خارجی لوگ ہیں ان کو خرید کے ہماری محب وطن فوج سے لڑوایا. ٹھیک ہے, جو حقیقت ہے. جب ہمیں پاکستان کو اس طرف الجھانے کے اس میں انہوں نے بولا کہ پاکستان کو ادھر الجھا دیا جائے, ایران کی طرف ہم آرام سے حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی ہوا. ہم اس طرف جنگ کے حالت میں تھے افغانستان کی, اور جب اس طرف دیکھا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک ثانیہ ہوا آیت اللہ صاحب کا, جو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا, جس میں انڈیا بھی شامل ہے. اسی لیے انڈیا یوں شامل ہے. ابھی مودی صاحب گئے تھے ابھی انڈیا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں انہوں نے بھیک مانگی اپنے لیے امریکہ میں. جی امریکہ نے, کہ امریکہ نے بولا ٹھیک ہے جی آپ کچھ معاملات ہوئے, اس کے بعد انہوں نے بولا سر ہمارے تو مت لگ رہا ہے پاکستان کی آرمی الحمدللہ ایک ایسی آرمی ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اور ہمارے جو ادارے کے لوگ ہیں الحمدللہ وہ ایسے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خارجی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتے, بالکل یوں نہیں رکھتے صاحب ویلیو, کہ ان کے جو پشت پرست لوگ ہیں نا وہی خود بت پرست لوگ ہیں. وہی بت پرست لوگ جو ان کے خود پرست ہیں, جو ان کا خود پرست ہے وہ بت پرست ہے. کیوں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا دانش صاحب کو سرپرست بھی ہوں گے وہ. جی سرپرست بالکل, وہ سرپرست بھی ہیں, خود پرست بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں ناظرین, شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. دانش جعفری آج ہمارے ساتھ ہیں. دانش جعفری سے مزید ہم
बहुत सारी मालूमाती बातें करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक। यहाँ तो कहीं सनसेट है ही नहीं, अब अफ्तार कैसे होगा? सनसेट यही है, बस बिल्डिंग के पीछे छुप गया है। सोचों की दस्तक को सीढ़ी बना के चल, रुकावटें हटा के आगे जाने कल। सनसेट आ गया। इनकी क्रिएटिविटी रहे स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट, इसीलिए टैंग में है विटामिन सी, डी और जिंक की फोर्टिफिकेशन, जो बच्चों की इमेजिनेशंस को सपोर्ट करता है। टैंग इफ्तार का परफेक्ट पार्टनर। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी दानिश जाफरी से, और दानिश ने इजहार भाई बड़ी बारीकी से जो है बड़ी बारीक निशानदेही की है, बात को उजागर किया है, कौन बताने की कोशिश की है कि जो अस्करी क़यादत जी जिस अंदाज में माजी में भी दुश्मनों को धूल चटाया है, बिल्कुल, और आइंदा भी इंशाल्लाह चटाएंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम हाजी साहब से, हाजी नासिर यामीन साहब से एक उनकी खूबसूरत आवाज में एक नात मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनना चाहते हैं। एक बिस्मिल्लाह। सरकारे दो आलम के रुख पर, सरकारे दो आलम के रुख पर, अनवार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम के रुख पर, अनवार का आलम क्या होगा। कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में इनकी, ज़हरा हसन जिस वक्त थे खिदमत में इनकी, ज़हरा हसन हुसैन वली, उस वक्त रसूले अकरम के घर बार का आलम क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। हुजूरे अकरम के घर बार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। काया शान है जब घर वालों की, ये शान है जब घर वालों की। सरकार का आलम क्या होगा। सुनते हैं अरब के ज़र्रों पर, अनवार की बारिश होती है। सुनते हैं अरब के ज़र्रों पर, अनवार की बारिश होती है। ऐ नजम न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। न जाने तैबा के
गुलजार का आलम क्या होगा, कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या आप नात पेश किए नासिर आमीन साहब, नासिर भाई, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन, और आवाज में और मतलब कि मिठास और अता फरमाए। हाँ, ये आपकी आवाज में यकीन करें इतनी मिठास है, ये दिल को, जो समाइन दिल को सुन रहे हैं छू आपको, जो समाइन सुन रहे हैं, नाज़रीन जो देख रहे हैं आपको ऑन एयर आपको टेलीविजन पर आपके लिए वो मतलब के मैसेजेस भी आ रहे हैं। बिल्कुल। ये माजी में मैं आपके बताता चलूं कि ये डॉक्टर हाजी साहब जो हैं हमारे बहुत मुश्किलों से अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इनकी बिजी हैं और इनकी बहुत सारे प्रोग्रामिंग चल रहे होते हैं। पिछले जब इनको हमने पिछले प्रोग्राम में जब इनको मदऊ किया था तो हमने बड़ी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर एक और प्रोग्राम के अंदर आपने बैठना है, तो आज माशाल्लाह से दूसरे प्रोग्राम के अंदर इनकी मेहरबानी, शुक्रिया आपका नासिर साहब कि आपने मतलब हमारे रिक्वेस्ट को, चैनल की रिक्वेस्ट को कबूल फरमाया आपने और अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आए और नात पेश की। मैं यही दुआ करूंगा आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, और इस नात खानी हमारे स्टूडियो में हो या कहीं भी आप जाकर करते हैं तो उसकी बरकत के जो फजूल होते हैं वो फजूल अल्लाह ताला उनको सबको उससे मोहब्बत से दिलों को मुनव्वर करता है। तो इसमें आपको भी कंट्रीब्यूशन बहुत सवाब आपको अल्लाह ताला पहुंचाएगा और हम सबको भी सवाब पहुंचाएगा कि आप जैसे तिमरा नाथ खां को अपने स्टूडियो में बुलाकर दिलों को मुनव्वर किया। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये हकीकत है, हमने हमने जो प्रोग्राम किया था इनके साथ तो माशाअल्लाह से उसके बाद हमारे पास बड़े मैसेजेस आए और बहुत से ऐसी हमारे पास कॉल्स आई कि जो हाजी नासिर यामीन साहब को दोबारा, अच्छा मैं देख रहा हूँ मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, सागर से मैसेजेस आ रहे हैं जी, अभी भी देखिए हम लाइव जा रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नासिर यामीन साहब को से एक और नात पढ़ाई जाए, तो मैं बिल्कुल हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह हम बैठे हुए अभी हम एक ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमें एक नात और जो है वो हम खास करेंगे यामीन साहब से पढ़ेंगे। अब हमने अभी कुछ बातें हैं अभी जो करनी है हमने दानिश जाफरी से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक की हम शॉर्ट ब्रेक बिल्कुल नहीं सागर साहब, लेकिन ये आवाम को ये बता दें, पब्लिक जो ऑनर देख रही है हमें आपको कि दानिश तैमूर जो है जो जिस चीज़ की निशानदेही की है अस्करी हवाले से, लेकिन थोड़ी सी वो रोशनी डालेंगे जो कल इतने बड़े सानहात हुए हैं। बिल्कुल अभी हम इनसे बहुत सारी हम ब्रेक के बाद इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर मसालेदार तड़के कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है। खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। ब्रेक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारी जो बातें हो रही थी हम वहीं से बातों को सिलसिले को जोड़ेंगे इधर साहब, लेकिन दिल कर रहा है कि हम एक हाजी साहब से बेशक बिस्मिल्लाह हाजी आमीन नासिर भाई हर ब्रेक के अंदर रिक्वेस्ट है जी दानिश भाई बहुत दूर से आए हुए और इनके भी तासुरात देना बहुत ज़रूरी है। हम आखिर में नात पेश कर देंगे, अभी शुरू से इनसे आवाज़ है मेरी आपसे गुजारिश है कि हम भी आवाम जाने छोड़ रहे हैं। देखिए मैसेजेस नहीं मातरत के साथ अभी हम एक नात हम लास्ट में बिल्कुल जब हम इसको एक्स्ट्रा खत्म करेंगे। तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी राहों में मैं सब कुछ लुटाऊं या रसूल अल्लाह।
تیری راہ میں میں سب کچھ لٹاؤں یا رسول اللہ، تیری الفت اور تیری آل کی الفت بڑی سونی، تیری الفت اور تیری آل کی الفت بڑی سونی، میں اہل بیت پہ قربان جاؤں یا رسول اللہ، میں اہل بیت پہ قربان جاؤں یا رسول اللہ، تیری راہ میں سب کچھ لٹاؤں یا رسول اللہ، علی کا فاطمہ زہرا کا صدقہ بخش دے مولا، علی کا فاطمہ زہرا کا صدقہ بخش دے مولا، مدینے کی زیارت کو میں آؤں یا رسول اللہ، مدینے کی زیارت کو میں آؤں یا رسول اللہ، تیری راہ میں میں سب کچھ لٹاؤں یا رسول اللہ، مجھے حسنین کے صدقے کبھی دیدار تو بخشو، مجھے حسنین کے صدقے کبھی دیدار تو بخشو، میں تیرے نور سے اکھیاں سجاؤں یا رسول اللہ، میں تیرے نور سے اکھیاں سجاؤں یا رسول اللہ، تیری راہ میں میں سب کچھ لٹاؤں یا رسول اللہ، دیوانہ ناصر کہتا ہے کہ جس وقت بھی قضا آئے، دیوانہ ناصر کہتا ہے کہ جس وقت بھی قضا آئے، میں اس وقت بھی یہی نعرہ لگاؤں یا رسول اللہ، میں اس دن بھی یہی نعرہ لگاؤں یا رسول اللہ، تیری راہ میں میں سب کچھ لٹاؤں یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے واری میں جاؤں یا رسول اللہ، تیری راہ میں میں سب کچھ لٹاؤں یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے ناصر بھائی، آپ نے لوگوں کے پاس پھر کو گرما دیا، قلب کو جگا دیا، محفل کو معطر کر دیا آپ نے۔ یہ میں تو عوام کے مشکور ہوں کہ وہ آپ کے اندر چاہ رہے ہیں، اور یہ میسیجز مار پر اب بھی آ رہے ہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کو چھوڑا جائے، لیکن آپ کے وقت بہت قیمتی ہے، دوسرے چینل پہ آپ کو جانا ہے، نعت پڑھنی ہے، اور یہاں بھی وقت کے مطلب نزاکت کو دیکھتے ہو کہ بریک اور آخری بریک چل رہا ہے ہمارا، اس میں بہت سے کل کے حوالے سے بھی ہمیں جعفری صاحب سے بات چیت کرنی ہے، تو آپ کا ایک مطلب پھر شکریہ ادا کروں گا، اور اللہ کا حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے آواز میں چار چاند لگائے، اور آپ کے مطلب کہ عمر میں دراز عمر آمین آمین، تاکہ لوگوں کو آپ دل کو منور کرتے رہیں۔ بالکل۔ دانش، کیسا لگا آپ کو ہمارے حاجی ناصر یامین صاحب نے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی؟ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، پروردگار اپنے تقویٰ کے سائے میں رکھے، اور بلندیاں عطا فرمائے، اور حوصلہ دے، اور منکروں سے محفوظ رکھے۔ بڑی اچھی اصل بات جو ہے منکروں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ دانش، اتنا بڑا ثانیہ اور رونما ہو گیا، اتنا بڑا ثانیہ جو بہت صدیوں میں بھی سمجھ لو کے بعد ایسا کوئی بڑا ثانیہ ہوا ہے، آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کا، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ یہاں بریک ہو جائے گا یا ایران جو ہے وہ آگے تک جائے گا؟ دیکھیں صاحب، بات یہ ہے کہ ایران تو اب نہیں رکے گا، ٹھیک ہے، صحیح، کنٹینیو وہ چلتا رہے گا، صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہودی نصارہ نے ایک چیز سوچی تھی کہ جیسے اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کرنے کے بعد ایران بیٹھ جائے گا یا جھک جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی بھی مستقل وہ حملے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہودی نصاراؤں پہ ابھی بھی مستقل لگا ہوا ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا۔ اور الحمدللہ سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ اچھی آئی پیش، اور یہ بہت اچھی ہم خوشگوار یہ بات ہے کہ ہماری جو اپنی پاک فورس الحمدللہ ان سرحدوں پہ جا چکی ہے جہاں دشمن ہے،
माशाअल्लाह, बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप ये समझ दानिश। लें आप कि इस टाइम हमारी जो आर्मी है वो अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ है। अच्छा, ये तो गुड न्यूज़, अच्छी बात है ये तो ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हम हर प्रोग्राम में ये बात बोलते हैं। मुसलमानों का जो एक किबला अव्वल ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जो पाकिस्तान बना है, सारी चीज़ें इसी पे बुनियाद है। बिल्कुल। इसराइल और अमेरिका यहूदी नसारों को क्या चाहिए, हम आपस में मुसलमानों को लड़वाते रहे, ठीक है। बिल्कुल। खाजियों को जब इन्होंने अपनी तरफ से इंडिया और ये क्या नाम है अपना अफगानिस्तान जी, इनको जब दिया गया पैसा तो इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया गया, ठीक है। हमने इनको कितनी पनाह दी देखिए इस मुल्क में, ये तो इतने यानी कि वो लोग हैं ऐसे निकले कि जैसे 40 साल का अरसा कम नहीं होता है दानिश भाई, 40 साल से हम सागर साहब एक मैं सवाल कर लूँ जी जी करें कि ये जो कल हादसा रनुमा हुआ, ये तो मेरे दानिश के मुताबिक काफ़ी टाइम से, कई सालों से ये कोशिश कर प्लानिंग प्री प्लान था। तो इस प्री प्लान मतलब क्या खौफ था, अमेरिका हो, इंडिया हो या इसराइल हो, क्या इनको खौफ था देखें जो इनसे कि इतनी टारगेट करके इनको, और वो भी रमजानुल मुबारक में। एक चीज़ ऐसी है कि ईरान के मुतालिक, आयतुल्लाह के मुतालिक इनका खौफ ही काफ़ी था, ठीक है, ये तो है। अच्छा, दूसरी चीज ये नहीं खौफ था, क्यों खौफ था? खौफ यूं था, हम सब क्या करना चाह रहे थे? खौफ यूं करना चाह रहे थे कि ये आयतुल्लाह साहब जो है वन यूनिट, यानी एक आवाज पे इनकी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। और नहीं, इस्लामी ब्लॉक इकट्ठी होती है पूरी दुनिया में, तो यहूद नसार भी आते हैं, सब आ जाते, ठीक है। पर अमेरिका और इसराइल को ये खतरा था कि हम पे कोई ऐसा ईरान एटमी अटैक ना कर दे जो हम सफाए हस्ती से मिट जाए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त और वो टाइम आ चुका है, तो मिटने वाले हैं, और वो चीज़ ईरान के पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से मुल्क साथ भी दे रहे हैं, जो इनका बस समझ लो अल्लाह खैर करे डी एंड चल रहा है। अच्छा, ईरान में जो मतलब दिन का जी जो मज़ार अक़दस है जी, बिल्कुल ईरान इराक में, जी, तो क्या समझते हैं कि दुश्मनाने कुफ़ार दुश्मन इस्लाम ये अमल कर सकते हैं? नहीं क्यों, किसी नुकसान देखें नहीं एजाज साहब, दानिश भाई आप बैठे हुए हैं, ये देखें ये हदीस पाक मौजूद है इस चीज़ की, और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निशानी भी थी, उन्होंने कहा भी था, ये बहुत सारे पैगंबरों ने भी ये सारी निशानियां बताई थी कि ऐसा होगा, क्योंकि मुसलमान जो हैं जी बिल्कुल निशानियां बताई थी, तो हाँ, और देखें, और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, यही वो जगहों की निशानदेही है कि यहाँ से रेला निकलेगा और वो जाएगा और तबाही की तरफ फैलाएगा। हदीस में ऐसा ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, खालिस्तान जिसको कहा जाता है, वो अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है जी। ये वो लोग हैं कि हमने इनको 40 साल पालने के बाद भी ये हमारे नहीं हुए। और फिर हम इनको, जब हमने इनको देखा कि इंडिया के फिर भी ये साथ हैं और पिट्टू हैं उनके, वो रहेंगे, और अभी हमने इनको माशाल्लाह इनको मुंह तो जवाब दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी ने इनकी 27 चौकियों पे कब्जा कर चुके हैं, माशाल्लाह। दूसरी बात कि काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह पेशकदमी करने से ये दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी, हमारी पाक फौज घुस गई। अच्छा दानिश जाफरी, आपसे एक ये भी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि इतने अरसे के बाद यकीनन इंडिया तो खुलकर सामने नहीं आ रहा, जी बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये हमें आपको पता है, पूरे कौम को पता है, बच्चा को पता है, दुनिया को पता है, पुष्प नहीं कर रहा, बिल्कुल 100% इनडायरेक्टली वो काम कर रहा है, वो शैतानियत वाला मूजी वाला जो मूजी जानवर जो हरकत मोदी साहब ठीक है ना। तो अब वो पीछे से बैकडोर से जो डोर से वो आ रहे हैं, और अफगानिस्तान जी को एक नई रंग देकर पाकिस्तान पे अटैक कराने की कोशिश, उधर अमेरिका के साथ मिलकर हाथ पर जोड़कर, इधर मतलब के इसके ऊपर ईरान के ऊपर तो मैं आपको बता दूं, ये प्लानिंग तो बहुत लंबी थी इनकी, और पुरानी भी थी। यहूदी नसारा जो है एक हुए हुए थे, ठीक है, और जब ये एक हुए हुए थे ना, प्लानिंग तो बहुत
तभी लेंगे, ठीक है, कि हम ईरान को हदफ बनाएंगे, फिर हम इराक को हदफ बनाएंगे, फिर हम फला को हदफ पाकिस्तान को हदफ बनाएंगे, ये भी है। हमारा सबसे बड़ा जो प्रोपगंडा है इसराइल का और अमेरिका का, सबसे बड़ा प्रोपगंडा है हमारा पाकिस्तान को हदफ बनाना। और इंशाल्लाह कल भी हमने इन यहूदियों को नहीं कबूल किया था और आज भी नहीं करेंगे, आइंदा करेंगे इंशाल्लाह, आइंदा आने वाली नस्लों तक कबूल करेंगे। आयतुल्लाह खास ख़ुमानी साहब की से मैं अगर कुछ बात कहूँ तो ये है कि रहबर मोहम्मद एक मर्द मुजाहिद थे, ठीक है, 76 साल की उम्र में उन्होंने माशाल्लाह जो उन्होंने रूस के साथ 10 साल आप देख लें तबील, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको ये सोच रहे थे यहूदी नसारा के ईरान तन्हा रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, कोई साथ नहीं देगा, पर इसकी भूल है। वो यूं भूल है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह शाना ब शाना ईरान के साथ खड़ा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी और पाकिस्तान से मुराद ये है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और फौज अवाम के साथ खड़ी है और तमाम मिलकर वो ईरान के साथ खड़ी है। अगर कुछ अनासिर ये बोलते हैं कि यार आर्मी ने ये कर दिया या आर्मी ने वो कर दिया, तो वो एक जनरल्स या एक दो जनरल्स के वो मामला अलग है। एक जो बार्डर से लेके पूरी कमान तक जो जनरल है वो पूरी फौज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई क्रैप नहीं बिल्कुल नहीं है। ये लोगों ने एक प्रोपगंडा बनाया था बस। और देखें सबसे बड़ी बात ये, इस फौज का नाम हैदर करार क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि ये हैदर करार के मानने वाले हैं भाई, सही, ठीक है ना। और हैदर करार के मानने वाले उस दौर में नहीं झुके, 1400 सदियों से नहीं झुके तो जितने बहादुर थे, अब कैसे झुके? जितने बहादुर थे तो उनके मानने वाले भी अफवाज पाकिस्तान हो या आम अवामुन नास हो, जो इस आम के साथ जुड़े रहेगा वो वैसे ताकतवर होगा। बड़ी ज़बरदस्त दानिश ने, हमारे दानिश जाफरी ने बहुत ज़बरदस्त बात की और इज़हार साहब इन्होंने एक चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कर दिया कि, और जो हमारे लिए भी एक बड़ी ख़बर है, बड़ी रॉयल न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दानिश जाफरी की तरफ से दे रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारे पाक फ़ौज के दस्ते, ताज़ा दम दस्ते ईरान के बॉर्डर पर मौजूद है। ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए खबर है। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं नाजरीन, क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त हो चुका है। दिल तो नहीं कर रहा कि इतने अच्छे दोस्त और हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको हम रुखसत करें। और पाकिस्तान के हालात पे हम बात कर रहे हैं, इराक और सऊदी और अमेरिका, जापान, हिंदुस्तान से मुतालिक बातें हो रही हैं। ये मतलब कि आलम इस्लाम के लिए एक चैलेंज भी है, आलम इस्लाम की चैलेंज भी है। तो मैं एज ए मेज़बान रॉयल चैनल की तरफ से मैं ये अपील करूंगा, मुतालबा करूंगा। अभी उन्होंने दोपहर में ही और इन्होंने क्या नाम है इसराइल के इन्होंने हदफ बोला है, नेतन्याहू ने खुला बोला है कि अगला हदफ हमारा पाकिस्तान। माशाल्लाह हलवा नहीं है जो ऐसी खा जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा सही कह रहे हो दानिश जाफरी। एक प्रोग्राम के एंड से पहले ये भी थोड़ा सा ले लिया जाए, जो सियासत से कंसल्ट है ना, ये भी सारी चीज़ें। तो जो भी सियासतदान, सियासी मजहबी, मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ कि जिस तरह से स्पीड होनी चाहिए, जो लावा पकड़ने जो एहतजाज करनी चाहिए थी, वो कर नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या मसला है? देखें इसके पीछे मुस्लिम, देखें एक बात को मैं वाज़ेह कर दूँ कि हमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से सिर्फ सब्र और तनकील मिली है, ठीक है। सुलेमान कासिम साहब को शहीद किया गया, जब भी सब्र किया। अब आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब को शहीद किया, जब भी सब्र किया गया। असल में जब तक हमारे पाकिस्तान में, हमारे इस पाकिस्तान में हम सब फ़िरका वाराना चीज़ें निकाल के जब तक एक मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम बिखरे रहेंगे। अच्छा एक सवाल है, फिरका वाराना इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है कि जब इंसाफ किसी को ना मिले, इंसाफ किसी को ना मिले, और इंसाफ दिन इस्लाम बता रहा है कि इंसाफ को तराजू को बराबर रखा जाए। इंसाफ अगर ना मिले तो फिर वो तफरका होते हैं, जब तफरका होता है उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें क्या होता है, तो इंतशार होता है, जब इंतशार होता है तो फिर क्या होता है, वो अब तफरीक आलम होता है, वो भाई के दहाने पर खड़ा होता है। मैं समझता हूँ साहब और जाफरी साहब और नासिर जामीन भाई यहाँ बैठे हुए नाखा हमारे मशहूर मारूफ,
मैं ये फिर इसी प्लेटफॉर्म में कहना चाहूँगा कि पहले अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, ठीक है ना, तमाम चीज़ के खात्मा इंशाल्लाह हो जाएगा, यूनिटी होगी तो यूनिटी इज़ बिग पावर। बिल्कुल, हमारे इज़हार साहब ने भी कह दिया जी, और दानिश ने भी हमें ये बात आप तक नाज़रीन पहुँचा दी कि जब यकजहती जो है बहुत ज़रूरी है। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपसे अल्लाह हाफिज तो अभी हम कर रहे हैं, मगर आज की जो बिल्कुल लास्ट एपिसोड के अंदर हमारे मारूफ नातख्वां हाजी नासिर यामीन साहब की नात मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनना ना भूलिएगा। अब हम सबको इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद बखुद ढूंढने मिल जाएगा। क्या बताऊं इनके दर पर जाके क्या मिल जाएगा, क्या बताऊं इनके दर पर जाके क्या मिल जाएगा, मुद्दई के लब हिलेंगे, मुद्दा मिल जाएगा, ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा, गम नहीं गुम हो भी जाए राह फिरदौसे भरी, गम नहीं गुम हो भी जाए राह फिरदौसे भरी, पर मुझे तन का नाम लेगा, रास्ता मिल जाएगा, पर मुझे तन का नाम लेगा, रास्ता खुल जाएगा, मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद बखुद ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।